Hi friends, we are back again with our very special show Come Closer to Yourself, and today we have a very special guest with us, Mr. Naman Singhal, who is the CEO of AIC at ISA Mohali, which we all know as Indian School of Business. Sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है Most show welcome. में। Thank you. और sir has started his career with Ola as a Marketing marketing manager. manager जी and सिर्फ थोड़ा सा हमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में आप बताइए। जी तो Atal Incubation Center was started by one of the government bodies. So it's called Atal Innovation Mission at Niti Aayog. उनकी scheme है, have they wanted to generally promote entrepreneurship in the country. Under that, they established some 100 incubators throughout the country known as AICs. So that's what AIC at Indian School of Business is. We work with अर्ली स्टेज वेंचर्स स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं, उनको बड़ा करने में whatever support they need. That's what we generally do. Right. Sir, I would like to share it with you and with our audience that this show is specifically for the mental being awareness. तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, when you are, tired from the outer circumstances, what do you do? How do you come closer to yourself? That's a very very beautiful question, Madhu ji. You know, काफी कम समय मिलता है कि you actually think about and reflect कि आप consciously ऐसी कौन से चीजें करते हैं. But for me it has been interesting. मैं कई बार depending on the circumstances, depending on life situations, depending on different stage of my life, I've been doing different activities. Some of them are तो आजकल आप जैसे you were visiting in my office. I've grown fond of reading these days. तो reading is something जिससे मुझे बड़ा सुकून टाइप मिलता है. Other than that, very consciously, at least about 2 to 3 months in the year, I go for cycling. तो जब मैं साइकिलिंग करता हूँ तो सुबह जल्दी निकलता हूँ और थोड़ा लंबे रूट पे निकलता हूँ. सो आई डू लाइक 30-35 किलोमीटर्स. तो वो बड़ा अच्छा मेडिटेटिव टाइम होता है मेरे लिए. आई यूज दैट टाइम टू रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्ट एंड काफी सोचने के बारे में मिलता है. जी. सो कितनी खूबसूरत बात कही सर ने कि ना तो वो किताबें पढ़ते हैं अपने सुकून को पाने के लिए, या फिर वो साइकिलिंग पे चले जाते हैं. साइकिलिंग पर जाने से जो नेचर का एनवायरनमेंट है उसमें उनको इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलता है. तो माय सेकंड क्वेश्चन टू यू, व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट टू यंग एंटरप्रेन्योर, स्पेशली हु आर स्टार्टिंग देयर न्यू वेंचर? Right. देखिए, in our line of work, we are blessed to be interacting with very innovative people. डेली हमारे पास बड़े अच्छे आइडियाज वगैरह लेके लोग आते हैं. बहुत अर्ली स्टेज पे आते हैं, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ आते हैं लोग. तो some qualities that we look for is whether you're passionate about solving a particular problem. If yes, then we look at what kind of solution you're building. If there is merit in both of these, then there will naturally be a customer who will be willing to pay for the solution that you're building, right? तो ये बहुत ही basic and can't be stressed upon much कि यही base है. अब इसके ऊपर आप कोई टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, कोई ट्रेड पे काम कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाने में काम कर सकते हैं. सो दैट इज द बेस लाइन. उसके ऊपर मैं हमेशा एक मैंने दूसरे किसी पॉडकास्ट में सुना था. बड़ी अच्छी चीज़ें जो मैं बोलता हूँ कि when you are pursuing such activities in your life or whatever in general, you should always have fire in your belly, curiosity in the mind and humility in the heart. तो अगर आप ये वर्च्यूज के साथ चल रहे हैं तो आप जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं अच्छी जगह ही पहुंचेंगे. जी. और and whom do you get inspired? आपकी इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है? देखिए, बहुत लाइफ इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत अच्छे
लोग आपको अलग-अलग जगहों पे मिलते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे आज तक मिला है। बट जस्ट टू नेम अ फ्यू पीपल इन माय लाइफ, तो मेरे एक म्यूज़िक टीचर थे स्कूल में, अभी भी वी आर स्टिल कनेक्टेड, अभी भी मैं जाता हूँ स्कूल के सामने से तो उनको कॉल ज़रूर करता हूँ कि आप हैं तो मैं अंदर आके आपसे मिल लूँ। तो अ, उन उन्होंने मुझे हमेशा कठिन परिस्थिति में भी हमेशा चीयरफुल रहना, हमेशा लाइवली रहना, उनसे बहुत सीखा मैंने। ही इज़ एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक। अ, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, आई मीन he shared some of his personal anecdotes also. There was a time when he was almost about to lose his eyesight. But despite that, level of cheer that he had, कि um, वो एक गाना था ना कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ही एम्बॉडीज दैट सॉन्ग फॉर मी। तो उनसे मैंने लाइफ में ऑप्टिमिज्म बहुत सीखा। एक मेरा दोस्त है, उसके साथ आजकल हम लोग एक काम कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड अ वेंचर ऑफ आवर ओन। तो एक बार एक सामान की डिलीवरी करनी थी। तो नॉर्मली क्या होता है, कई आप जगहों पे सुनते हो कि जब आपने अपना वेंचर स्टार्ट किया तो आपने झाड़ू भी खुद से लगाया या चेयर भी खुद से हटाई। बट ये क्या होता है कि जब तक आपने खुद किया नहीं ना, तब तक आप वो महसूस नहीं कर पाते। तो एक बार हुआ कि एक ना डिलीवरी करनी थी, तो बोला कि एक बोरी, सो मखाना सेलिंग करता है वो, तो एक बोरी मखाना हमको कहीं पे सप्लाई करना था। तो टिल दैट टाइम आई डिड नॉट नो कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन होती है। सिर्फ मूवीज में देखा था कि भाई कोई आएगा ले ले, आप बोरी दे दोगे और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो फिर मैंने देखा कि उसकी गाड़ी में एक बोरी हमने लोड कर दी, और आई वाज अज्यूमिंग कि कहीं जाके हमको किसी को देना होगा। बट वी वेंट फॉर लाइक 15 किलोमीटर्स, और उसने अम्बाला हाईवे पे एक जगह गाड़ी लगाई। मुझे लगा अच्छा यहाँ पे आके कोई लेगा, बट व्हाट हैपेंड वाज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड एक बस आके रुकी, और इसको एक फोन आया कि बस आ गई, आप दे दो। एंड द नेक्स्ट इंस्टेंट व्हाट आई सॉ वाज कि इसने खुद अपने आप वो बोरी उठाई, और वो 8 लेन का हाईवे, मूविंग हाईवे क्रॉस करके, एंड ही वेंट एंड सप्लाइड देयर ऑन हिज ओन। एंड that moment it struck me कि even people who are doing well in their lives, जैसे this person I'm talking about, he's run several businesses in the past, does a multi-crore turnover, but when it comes to handling his business, he's doing that activity by himself, right? तो उससे बड़ा सीखने को मिला कि यार you actually so got to know what it means by saying how to get your hands dirty when starting your own venture, right? तो ये चीज़ें बड़ी इंस्पायरिंग लगी हैं मुझे, जो मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। So beautiful. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि like for the young entrepreneurs when they are starting something new और फिर कुछ भी हो जाता है, maybe small failure or maybe something happened in their personal life, maybe breakup has happened. So what do you want to suggest for the young people? Young. Right. So देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है, plus it goes beyond the realm of entrepreneurship in general. We face failures, we face rejections all throughout, right? हमने I can talk about myself. मैंने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी की, आईआईटी नहीं हुआ, अच्छा खासा रिजेक्शन मिला। कैट की तैयारी की, एक इंस्टीट्यूट में हुआ, 4 में नहीं हुआ, अच्छा रिजेक्शन मिला। सो इट इज़ वन ऑफ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, बिकॉज द levels of anxiety have gone up, especially in Gen Zs. The standard reports what we come across. But मेरा नज़रिया देखने का हमेशा ये रहा कि especially in your professional lives, it always helps if you have plan A, plan B, plan C, plan D, right? So, and then if the plan A doesn't happen, then the fallback is plan B. If this also doesn't happen, then you have plan C to fall back on. So if you have a list of plans,
then eventually you will land up in plan C, plan D, plan E somewhere, and you will not really regret about the opportunities that could not be materialized for you for a very long time. Same goes, I think, personal life में भी अगर आप इतने मेथोडिकल हो सके, एक अपने आप को समझाने की बात होती है, बट अगर आप कॉन्शियसली ये सोच सके कि ठीक है ये नहीं हुआ तो दूसरा लाइफ मुझे कहाँ लेके जा रही है, अपने एक्सपीरियंस से इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आई स्टार्टेड माई करियर विद ओला, उसके बाद फॉर सम रीज़न आई हैड टू लीव दैट जॉब. आई एम एजुकेटेड हूँ, ओला में काम किया था तो ये बड़ा था कि नौकरी तो मिल ही जाएगी, बट व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर जॉब्स आई वाज रिजेक्टेड बाय 50 कंपनीज इफ नॉट मोर. एक साल तक घर पे था. उसके बाद द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एट लीस्ट प्रोफेशनली हैपेंड टू मी. आई वेंट ऑन टू वर्क फॉर नीति आयोग, उसके बाद रिलायंस में काम किया, उसके बाद यहाँ पे आया. इन द लॉन्ग रन सब अच्छा हुआ और आई एम होपिंग कि आगे अच्छा चलता रहेगा. Similar trajectories I've seen with people in my sphere, in my network, in my very close friend circle, कि in the long run चीज़ें अच्छी हो जाती हैं. तो आप एक थोड़ा सा faith हमेशा रखना पड़ता है, थोड़ा going back to my teacher example, थोड़ा optimism ज़रूर रखना पड़ता है, अपनी strengths को समझना पड़ता है और अपनी वीकनेसेस को कॉन्शियसली इम्प्रूव करना पड़ता है. अगर वो कर रहे हैं तो इन दी एंड सब ठीक हो जाता है. So guys, see, look at his beautiful example कि जिनको 50 जगह से रिजेक्शन मिली और आज वो CEO है AIC में. Can you imagine? तो अगर सर यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आप क्यों नहीं? So इसी के साथ हम शो खत्म करते हैं. Sir, thank you so much for your precious time. और बहुत अच्छा लगा आपसे. बहुत मज़ा आया मुझे भी. Thank you so much for inviting me. I wish you and come closer to yourself, team success. Thank you.